हेलो एवरीवन, माय नेम इज विजयश्री एंड इलेक्ट्रिकल मोटर्स एंड ट्रांसफार्मर्स में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले ट्यूटोरियल में हमने IS 1180 पार्ट 1 1989 के हिसाब से थ्री फेज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के स्पेसिफिकेशन को देखा था। तो हमने कौन से पॉइंट तक देखा था? ट्रांसफार्मर ऑयल तक। तो अब हमें देखना है फिटिंग से। सबसे पहले हम देखेंगे स्टैंडर्ड फिटिंग्स। स्टैंडर्ड फिटिंग्स में क्या क्या है? टू अर्थिंग टर्मिनल्स लगाने हैं विद सिंबल दिस। ये है अर्थिंग का सिंबल। Okay. Then oil level gauge indicating oil level minimum 30 degree Celsius and maximum operating temperature. तो नोट यहाँ पे बताया गया है maximum and minimum positions correspond to the operating temperature of 5 degree Celsius and 95 degree Celsius respectively. Okay. तो ऑयल लेवल गेज इंडिकेटिंग ऑयल लेवल मिनिमम कितना होना चाहिए? 30 डिग्री यहाँ पे बोला गया है, 30 डिग्री सेल्सियस एंड मिनिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर। एंड उसके बाद मिनिमम एंड मैक्सिमम पोजीशन जो होती है वो करस्पॉन्ड करनी चाहिए टू द ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ दिस। ओके, देन उसके बाद लिफ्ट लग्स, रेटिंग एंड टर्मिनल मेकिंग प्लेट्स, plain breathing device which would not permit ingress of rainwater and insects, drain cum sampling valve, nominal size thread, preferably still with plug. Thermometer होना चाहिए, thermometer pocket for transformers of rating above 25 kVA. Okay, and the oil filling hole है, which is nominal size threads with cover for transformers without conservator. The bottom drain valve and filling hole may be used for filtration purpose also. कौन सा? Bottom drain valve and filling hole may be used for filtration purposes also. Extra fittings में हमें देखना है the following shall be available as extra fittings at the option of the purchaser if specified when inviting tenders. तो कौन सा पॉइंट यहाँ पे आएगा? डिहाइड्रेटिंग ब्रीदर इन लिeu ऑफ प्लेन ब्रीदिंग डिवाइस, filter value, okay, and thermometer pocket for transformers of rating 25 kVA and below, उससे नीचे के लिए कौन सा बोला है? डिहाइड्रेटिंग ब्रीदर, फिल्टर वैल्यू, देन थर्मोमीटर पॉकेट। ओके, उसके बाद आता है कंजर्वेटर। कंजर्वेटर में आता है on transformers of rating 63 and 100 kVA, 63 and 100 kVA, the provision of conservators is obligatory. यानी कि इन रेटिंग्स के ट्रांसफार्मर्स के लिए जो प्रोविजन है कंजर्वेटर का इज कंपल्सरी और मैंडेटरी. Okay, so when a conservator is fitted, the oil gauge and the plain or dehydrating breathing device shall be fixed to the conservator, which also be provided with a drain plug and filling hole. तो यहाँ पे बोला गया है जो कंजर्वेटर फिट किया जाता है, तो जो ऑयल गेज एंड प्लेन और डिहाइड्रेटिंग ब्रीदिंग डिवाइस है, ओके, इसके फिटिंग के हिसाब से जो प्लेन एंड ऑयल गेज एंड द प्लेन और डिहाइड्रेटिंग ब्रीदिंग डिवाइस है वो फिक्स कराया जाना चाहिए टू द कंजर्वेटर. ओके, which shall also be provided with a drain plug and a filling hole. Then, in addition, the cover of the main tank shall be provided with an air release plug. उसमें air release plug होना चाहिए main tank में. इसके लिए to enable trapped within the to enable trapped within to be released. जो भी फंसी हुई एयर है उसको रिलीज कराने के लिए. Unless जब भी conservator is so located as to eliminate the possibility of air being trapped within the main tank. तो जब तक कंजर्वेटर जो है इस तरीके से उसको लोकेट नहीं किया जाए कि ऑटोमेटिकली जो है वो एलिमिनेट कर दे जो भी ट्रैप्ड एयर है उसमें, हमें क्या कराना चाहिए? मेन टैंक के साथ जो भी एयर रिलीज प्लग है उसको इनेबल कराना चाहिए. ओके, देन उसके बाद आता है it is recommended that the pipe connecting the conservator to the main tank should be within 20 to 50 mm, 20 to 50 mm की उसकी लेंथ होनी चाहिए. किसकी? जो पाइप कनेक्ट होता है.
कंजर्वेटर और मेन टैंक के बीच में। ओके, इनसाइड डायामीटर, ये जो है ये डायामीटर की बात हो रही है यहाँ पे। एंड it should project into the conservator so that its end is approximately 20 mm above the bottom of the conservator so as to create a sump for a collection of impurities. Okay, minimum oil level corresponding to 5 degrees Celsius should be above the sump level. क्या बोला गया है, कौन सी वैल्यू? 5 डिग्री सेल्सियस। जो भी मिनिमम ऑयल लेवल है वो ज्यादा होना चाहिए सम्प लेवल से। उसके बाद आता है टर्मिनल अरेंजमेंट। द ट्रांसफार्मर शॉल बी फिटेड विथ 3 हाई वोल्टेज एंड 4 लो वोल्टेज आउटडोर टाइप बुशिंग्स ऑफ appropriate voltage and current ratings. Voltage and current ratings. The electrical characteristics of high voltage bushing shall confirm, क्या कंफर्म कराने चाहिए? IS 2099 एंड 1986। ये किसके लिए है? बुशिंग्स की बात हो रही है यहाँ पे। द लो वोल्टेज बुशिंग शॉल कन्फर्म, ये हो गया किसके लिए? हाई वोल्टेज बुशिंग्स के लिए। हाई वोल्टेज बुशिंग्स एंड लो वोल्टेज बुशिंग्स के लिए कौन सा? IS 7421 1974। ओके, so if required by the purchaser, a suitable cable in box may be provided on the secondary side. Okay, उसके बाद आता है connectors. Suitable bimetal connectors clamp type shall be provided on both HV and LV side for making sound terminations. तो क्या बोला गया है कनेक्टर्स में? जो सुटेबल बायोमेटल कनेक्टर्स है क्लैम्प टाइप, ओके, वो प्रोवाइड किए जाने चाहिए किसमें? HV एंड LV साइड में। किसके लिए? साउंड टर्मिनेशंस कराने के लिए। अब उसके बाद आता है मार्किंग एंड रिलेटिव पोजीशंस ऑफ टर्मिनल्स। तो मार्किंग एंड रिलेटिव पोजीशंस ऑफ टर्मिनल्स में आता है अप्रोप्रिएट कैरेक्टर्स इन अकॉर्डिंग विद कौन सा? IS 2026 पार्ट 4 1977 shall be indelibly marked upon adjacent to terminals. ओके, ये तो हो गया अब मार्किंग एंड रिलेटिव पोजीशन ऑफ टर्मिनल्स। अब आता है माउंटिंग अरेंजमेंट। द अंडरबेस ऑफ ऑल ट्रांसफार्मर शॉल बी प्रोवाइडेड विथ 274 into 40 mm channels, 460 mm long, जिसकी लेंथ होनी चाहिए 460 mm. One, to make them suitable for fixing to a platform or plinth. उसके बाद अब देखते हैं insulation levels. The transformer shall be capable of withstanding the power frequency and impulse test voltage for the appropriate voltage class as given in IS 2026 part 3 1981. किसमें बताया गया है? IS 2026 part 3 1981। क्या है, क्या बोला गया है? जो ट्रांसफॉर्मर है ये कैपेबल होना चाहिए किसके लिए? पावर फ्रीक्वेंसी एंड इम्पल्स टेस्ट वोल्टेज को विथस्टैंड कराने के लिए। सो फॉर द अप्रोप्रिएट वोल्टेज हमें क्या कराना है? इस स्टैंडर्ड को जो है चेक करना है, या इसके हिसाब से हमें सेट करना है हमारे ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग्स को, या फिर कह सकते हैं इंसुलेशन के लेवल को। देन लास्ट पॉइंट है हमारे इस ट्यूटोरियल का, लिमिट्स ऑफ टेम्परेचर राइज। तो टेम्परेचर राइज की लिमिट्स क्या होनी चाहिए? द परमिसिबल टेम्परेचर राइज शॉल नॉट एक्सीड द लिमिट्स ऑफ 55 डिग्री सेल्सियस व्हेन मेजर्ड बाय रेजिस्टेंस मेथड। तो जब भी रेजिस्टेंस मेथड से मेजर करें तो इसके ऊपर 55 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जानी चाहिए हमारी टेम्परेचर की राइज। ओके, किसके लिए? फॉर ट्रांसफार्मर वाइंडिंग एंड, तो ये हो गया ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग के लिए। ओके, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के लिए। एंड 45 डिग्री सेल्सियस जब भी थर्मोमीटर से मेजर करें तो इन टॉप ऑयल व्हेन टेस्टेड इन अकॉर्डिंग विथ कितनी होनी चाहिए? IS
2026 के हिसाब से पार्ट 2 1977 में बताया गया जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से होनी चाहिए। ओके, तो ये कब होता है? जब भी हम इसको रेजिस्टेंस मेथड से टेस्ट करते हैं, और ये थर्मोमीटर से जब टेस्ट करते हैं। ओके, तो ये हो गई हमारी टेम्परेचर राइज की लिमिट्स अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे हमारा ये ट्यूटोरियल खत्म होता है। इसके बाद फिर हमें देखना है लॉसेस एंड इम्पिडेंस वैल्यूज से। ओके, तो इसी में हमें कंटिन्यू करना है, इसी के कुछ पॉइंट्स है जो कि बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें ताकि इस तरीके की वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।